ganglia. Basal ganglia are a group of deep subcortical nuclei located at the base of the forebrain and are primarily involved in control of posture and movement. So here is the structure of basal ganglia. Basal ganglia mainly includes the caudate nucleus, the putamen, and the globus pallidus. So as you clearly see that this is caudate nucleus, this is putamen, this is structure, and this is globus pallidus. As you can see, globus pallidus has two parts. One is internus and one is externus, or you can say medial or lateral. So first of all, there are some difference between basal ganglia and the cerebellum. So unlike cerebellum, basal ganglia do not receive its inputs directly from the spinal cord, and they also do not directly project to the brainstem areas that control the motor activities. So the basal ganglia comprise a group of large nuclei that are located at the base of the cortex in close proximity to the thalamus. They work together as a functional unit. So all of the structure will work as a single functional unit with their connections. So these nuclei receives motor commands from the cortex, passes them through a series of feedback loops, and then relay them into the thalamus for return to and execution by the primary motor cortex. So they receive inputs from the motor cortex. So and then these inputs passes them through a series of feedback loops, and then they relay in the thalamus, and from thalamus they go to the primary cortex. The cortex makes the decision that about when to move and what task needs to be accomplished, but execution requires the careful planning about the timing of the contractile events, the distance the limbs and digits needs to move, and the force that needs to be applied. This is done by the basal ganglia. So cortex only decides that when to move and what take task to be do. कहने का मतलब है कि कॉर्टेक्स डिसाइड करता है कि अब कौन सा टास्क हमें करना है और कौन से बॉडी के पार्ट को हमें मिलाना है. बट जो एग्जीक्यूशन है जिसमें केयरफुल प्लानिंग है कि कितने उस मूवमेंट कौन सी मसल्स काम में लेंगी, कितना मूवमेंट हमारा आगे जाएगा, डिस्टेंस कितना रहेगा किसी काम को करने के लिए, वो सारा एग्जीक्यूशन बेसल गैंग्लिया के थ्रू होता है. The task of planning and executing motor commands falls on the basal ganglia, and these are not absolutely required for motor functions, but movements become grossly distorted and erratic if they are damaged. So the task of planning and executing motor commands है वो बेसल गैंग्लिया पे आता है और बेसल गैंग्लिया उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट करवाता है. मोटर फंक्शन होने के लिए इसका होना जरूरी नहीं है, पर अगर ये ना हो तो जो भी मूवमेंट होगा वो ग्रॉसली डिस्टॉर्टेड हो जाएगा एंड एरेटिक हो जाएगा अगर वो डैमेज हो जाए तो. सो फंक्शनली जो बेसल गैंग्लिया है उसमें मैंने अभी बताया था स्ट्रक्चर, उसमें कॉर्डेट न्यूक्लियस होता है, पोटामेन होता है, ग्लोबस पैलाइडस होता है. सो जो कॉर्डेट न्यूक्लियस और पोटामेन है उसको हम स्ट्रैटम भी कहते हैं, और पोटामेन और ग्लोबस पैलाइडस को एक साथ हम लेंटिकुलर न्यूक्लियस कहते हैं. साथ ही साथ साथ इसमें सबथैलेमिक न्यूक्लियस होता है जिसे बॉडी ऑफ लुईस कहते हैं, एंड सबस्टेंशिया नाइग्रा भी होता है. सो बेसल गैंग्लिया फाइलोजेनेटिकली एंड फंक्शनली द कॉर्पस स्ट्रैटम जो था उसको डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में. एक है नियोस्ट्रैटम या स्ट्रैटम भी कह सकते हैं, और दूसरा है पेलियोस्ट्रैटम और पेलिडियम. सो व्हाट इज नियोस्ट्रैटम और स्ट्रैटम? Phylogenetically, only the caudate nucleus and the putamen are of more recent origin and hence called the neostratum or short stratum. ये स्ट्रक्चर है, आप क्लियरली देख सकते हैं इसमें. एज यू कैन क्लियरली सी, दिस इज putamen, this is globus pallidus lateral or externus, this is global pallidus medial or internus, this is caudate nucleus, this is thalamus, this is subthalamic nucleus, and this is substantia nigra. तो स्ट्रैटम जैसे मैंने बताया था, पोटामेन, ये पोटामेन एंड कॉर्डेट न्यूक्लियस को कंबाइनली हम स्ट्रैटम कहते हैं, एंड पोटामेन प्लस ग्लोबस पैलाइडस इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नस, यह लेंटिकुलर न्यूक्लियस है. Stratum is the gateway through which commands from the cortex enter the nuclear complex. जो motor cortex से जो command आएंगे वो stratum के through जाएंगे. The stratum is dominated by GABAergic neurons and its output is largely inhibitory. जो stratum में जो input आएगा cortex से
स्ट्रैटम मतलब कॉर्डेट न्यूक्लियस और पुटामेन में, और इसका जो आउटपुट होगा वो गाबार्जिक न्यूरॉन्स होते हैं जो कि इनहिबिटरी होते हैं। वो आगे जब सर्किट्स आएंगे तब आपको समझ में आएगा। जो ग्लोबस पैलिडस है, जिसको हम पैलिडियम भी कहते हैं, कंपोज्ड ऑफ इनहिबिटरी गाबार्जिक न्यूरॉन्स। इसके दो पार्ट्स हैं, ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नस एंड ग्लोबस पैलिडस इंटरनस। Substantia nigra, Latin में black substance, is filled with the melanin, a dark pigment that serves as a substrate for dopamine formation. Functionally, it is divided into two parts. एक है pars reticulata, एक है pars compacta. Both region contains inhibitory neurons, जिसमें जो पार्स रेटिकुलेटा है वो प्राइमरीली गाबार्जिक है और पार्स कॉम्पैक्टा जो है वो डोपामिनर्जिक है। पार्स रेटिकुलेटा एंड ग्लोबस पैलिडस इंटरनस often functions together and have a similar anatomical structure, so they are often considered as a single functional unit. फिर सबथैलेमिक न्यूक्लियस भी है इसमें, ये इट इज अ पार्ट ऑफ द सबथैलेमस. It is a key link in basal nuclear feedback circuit and is the only primary excitatory glutaminergic center within the basal ganglia. जो excitatory जो pathway है उसके अंदर जो chemical use होता है वो glutaminergic है, और जो inhibitory है उसमें GABAergic है. Basal ganglia में जो paleal striatum था refers to the globus pallidus, which is older and primitive part. It is also called pallidum as it is pale. कनेक्शंस क्या हैं बेसल गैंग्लिया के? जो आफरेंट्स हैं या इनपुट हैं स्ट्राइटम में, स्ट्राइटम का मतलब कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड पुटामेन फॉर्म्स द मेन इनपुट साइट ऑफ द बेसल गैंग्लिया. मतलब बेसल गैंग्लिया में सबसे पहले जो इनपुट कॉर्टेक्स से आ रहा है वो स्ट्राइटम में आ रहा है, और स्ट्राइटम में होते हैं कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड पुटामेन. प्रोजेक्शंस क्या हैं? स्ट्राइटम अब जो इनपुट आ रहा है उनको प्रोजेक्ट करता है मेनली टू द ग्लोबस पैलिडस एंड सबस्टेंशिया नाइग्रा में. जो इफरेंट्स और आउटपुट फ्रॉम ग्लोबस पैलिडस है वो है मेन आउटपुट साइट ऑफ द बेसल गैंग्लिया. सो इसमें टोटल देखने वाली बात ये है कि जो मेन इनपुट साइट है वो तो है स्ट्राइटम, जिसके अंदर कॉर्डेट न्यूक्लियस और पुटामेन थे, और जो मेन आउटपुट साइट है वो है ग्लोबस पैलिडस जो बेसल गैंग्लिया की आउटपुट साइट है, और जो स्ट्राइटम से जो प्रोजेक्शंस जा रहे हैं वो जा रहे हैं ग्लोबस पैलिडस और सबस्टेंशिया नाइग्रा को. फिर afferents, in contrast to cerebellum, basal ganglia do not receive direct sensory input from the peripheral structures, spinal cord और brain stem sensory nuclei. जो मेन सेंसरी इनपुट है बेसल गैंग्लिया का वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से आता है. मेन सेंसरी इनपुट टू बेसल गैंग्लिया कम फ्रॉम द सेरेब्रल कॉर्टेक्स वाया स्ट्राइटम, यानी कि कॉर्डेट न्यूक्लियस और पुटामेन. द स्ट्राइटम जो कि कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड पुटामेन है इज रिगार्डेड एज द इनपुट साइट ऑफ द बेसल गैंग्लिया रिसीविंग फॉलोइंग afferents. थोड़ा अब इसमें नेटवर्क का प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है? नेटवर्क आवाज नहीं आती कभी कभी. वो नेट स्लो होगा. जो कॉर्टिकोस्ट्राइड प्रोजेक्शंस हैं यानी कि कॉर्टेक्स से स्ट्राइटम तक हैं, दीज ओरिजिनेट्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जैसे कि प्री मोटर कॉर्टेक्स, सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स, और ये सारे टर्मिनेट होते हैं इन स्ट्राइटम. दीज फाइबर्स आर ग्लूटामिनर्जिक, यानी कि ये स्टिमुलेटरी फाइबर्स हैं. उसके बाद थैलेमोस्ट्राइटल फाइबर्स, दीज ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सेंट्रोमीडियन न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस एंड टर्मिनेट इन स्ट्राइटम. Raphe-strate fibers, they are serotonergic fibers received by the stratum from raphe nuclei in the reticular formation of the brain stem. एक और फाइबर्स होते हैं जो पेडुंकुलोस्ट्राइटल फाइबर्स होते हैं, जो पेडुंकुलोपोंटाइन न्यूक्लियस ऑफ ब्रेन स्टेम से लेकर स्ट्राइटम तक आते हैं. क्या क्या कनेक्शंस होते हैं बेसल गैंग्लिया में? स्ट्राइटम से अब आते हैं हम ग्लोबस पैलिडस पे. स्ट्राइटम यानी कि जो कॉर्डेट न्यूक्लियस और पुटामेन है जिसमें रिसीव होते हैं मोस्ट ऑफ द afferents, give robust projection to both internal and external segment of the globus pallidus. ये जो इंटरनल और एक्सटर्नल सेगमेंट ऑफ ग्लोबस पैलिडस में स्ट्राइटम से जो प्रोजेक्शंस जा रहे हैं वो गाबार्जिक होते हैं, यानी कि इनहिबिटरी प्रोजेक्शंस होते हैं. और जो स्ट्राइटोनाइग्रल या स्ट्राइटम टू सबस्टेंशिया नाइग्रा का प्रोजेक्शन है, स्ट्राइटम ऑल्सो गिव्स गाबार्जिक इनहिबिटरी इम्पल्सेस टू पार्स रेटिकुलेटा ऑफ द सबस्टेंशिया नाइग्रा, क्योंकि जो पार्स रेटिकुलेटा था वो भी ग्लोबस पैलिडस इंटरनस की तरह ही काम करता है, तो उसमें भी इनहिबिटरी न्यूरॉन्स जाएंगे. इस पाथवे में अगर डिजनरेशन होती है तो एक डिजीज हो जाती है जिसको हम कहते हैं हंटिंगटन्स डिजीज. ये कुछ इस तरह से एक सर्किट सा बनता है. इसमें जो डॉटेड लाइंस है वो इनहिबिटरी हैं और जो फ्लैट लाइंस है वो स्टिमुलेटरी है. आप देखोगे इसमें सेरेब्रल कॉर्टेक्स से स्ट्राइटम में इनपुट आया, स्ट्राइटस से ग्लोबस पैलिडस के एक्सटर्नल में
इनहिबिटरी सिग्नल्स जाते हैं, एक्सटर्नल सेगमेंट से फिर सबथैलेमिक न्यूक्लियस में जाएंगे, वहां से ग्लोबस पैलिडस के इंटरनल, और वहां से थैलेमस से होते हुए वापस स्ट्राइटम और कॉर्टेक्स तक जाएंगे, थैलेमस से कॉर्टेक्स। अब देखो कि अगर सेरेब्रल कॉर्टेक्स से कोई भी इनपुट स्ट्राइटम में आता है जो कि स्टिमुलेटरी है, तो वो इस इनहिबिटरी को स्टिमुलेट करेंगे, जिससे कि इस जगह पर इनहिबिशन होगा, यानी कि गाबानर्जिक होंगे। वो गाबानर्जिक फिर से इस इनहिबिटरी को इनहिबिट करेंगे, यानी कि यहाँ पर स्टिमुलेशन होगा, वहां से वो उसके इंटरनल सेगमेंट में जाएंगे, वहां से फिर एक इनहिबिटरी सिग्नल थैलेमस में जाएगा, और वहां से थैलेमस से एक स्टिमुलेटरी सिग्नल कॉर्टेक्स में जाएगा। जो नाइग्रोस्ट्राटल प्रोजेक्शंस हैं, पार्स कॉम्पैक्टा पोर्शन ऑफ द सबस्टेंशिया नाइग्रा प्रोजेक्ट्स टू स्ट्राटम। दिस नाइग्रोस्ट्राटल प्रोजेक्शन इज डोपामिनर्जिक। जो नाइग्रोस्ट्राटल प्रोजेक्शन है, यानी कि जो सबस्टेंशिया नाइग्रा से स्ट्राटम में आ रहा है, वो डोपामिनर्जिक है। इस सिस्टम का डीजनरेशन होने पर डिजीज होती है पार्किंसनिज्म। एंड प्रोजेक्शंस फ्रॉम द सबथैलेमिक न्यूक्लियस टू ग्लोबस पैलिडस। Subthalamic nucleus projects to the internal segment of the globus pallidus, and this projection is excitatory. Efferent connections क्या हैं basal ganglia के? The principal output nucleus of basal ganglia is the internal segment of the globus pallidus. जो stratum था वो mainly input channel था, और जो globus pallidus है वो internus जो है globus pallidus internus वो main output nucleus है। दे इफरेंट जो हैं आप, दे अराइज फ्रॉम द इंटरनल सेगमेंट ऑफ द ग्लोबस पैलिडस, एंड फिर उसके बाद वो कहाँ जाते हैं, वो वेंट्रो एंटीरियर, वेंट्रोलेटरल एंड सेंट्रोमीडियन न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस में जाते हैं। थैलेमस से फिर ये फाइबर्स प्रोजेक्ट करते हैं प्री फ्रंटल एंड प्री मोटर कॉर्टेक्स में, वहाँ से वो फाइबर्स फिर जो इंटरनल सेगमेंट ग्लोबस पैलिडस के जो फाइबर्स होते हैं वो इनहिबिटरी हैं, और आउटपुट फ्रॉम द थैलेमस टू सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज एक्साइटेटरी। मतलब अगर यहाँ से जो भी सिग्नल जा रहा है ग्लोबस पैलिडस से जो जा रहा है वो गाबानर्जिक है, इनहिबिटरी है, और जो थैलेमस से सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जा रहा है वो ग्लूटामिनर्जिक है, यानी कि एक्साइटेटरी है। और पार्स से रेटिकुलेटा जो पोर्शन है सबस्टेंशिया नाइग्रा का, वो भी थैलेमस में प्रोजेक्ट करता है। Efferent to red nucleus, this pathway includes fibers from globus pallidus, फिर red nucleus, रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट पाथवे। अब हमारे पास दो तरह की पाथवेज आती हैं, डायरेक्ट पाथवे और इनडायरेक्ट पाथवे, बेसल गैंग्लिया का फंक्शन कोई भी तरह का मोटर एक्टिविटी एग्जीक्यूट कराने के लिए। The inputs, interconnection and output constitute two important neural pathways through the basal ganglia that are involved in control of the motor activities. एक है डायरेक्ट पाथवे और एक है इनडायरेक्ट पाथवे। ये फीडबैक सर्किट्स भी हैं। जो मोटर कॉर्टेक्स है कम्युनिकेट्स करता है अपने इंटेंट को स्ट्राइटम से। फिर देयर आर टू पाथवेज फॉर द इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम स्ट्राइटम टू द बेसल न्यूक्लियस, एक है डायरेक्ट एक है इनडायरेक्ट। बोथ एंड एट द थैलेमस, ये दोनों पाथवेज थैलेमस पे एंड करती हैं, which is tonically active and stimulates the cortical areas that ultimately control the musculature. अब डायरेक्ट पाथवे क्या है? सबसे पहले जब स्ट्राटम में कोई भी कॉर्टेक्स से इनपुट आता है, यानी कि कॉर्डेट न्यूक्लियस और पोटामेन में, इट इनहिबिट्स द ग्लोबस पैलिडस इंटरनस पार्स रेटिकुलेटा कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो इनपुट कॉर्टेक्स से स्टिमुलेटरी सिग्नल आएगा स्ट्राटम में, फिर स्ट्राटम ग्लोबस पैलिडस इंटरनस को इनहिबिट करेगा। These two nuclei are tonically active normally, and their output suppresses the thalamus tonic output to the motor cortex. तो स्ट्रैटम को अगर एक्टिवेट करते हैं, allows the thalamus to stimulate the motor cortex. In general, the direct pathways increases the motor activity. वो मैं समझाता हूँ कैसे। ये कॉर्टेक्स से स्ट्रैटम में आएगा, स्ट्रैटम से ग्लोबस पैलिडस इंटरनस यानी कि मीडियस में ये जाएगा इनहिबिटरी सिग्नल, यानी कि यहाँ पर ये स्टिमुलेट हुआ तो इसने ज़्यादा इनहिबिशन यहाँ पे दिया, इसने इनहिबिशन दिया तो ये जो इनहिबिटरी न्यूरॉन था वो इनहिबिट हुआ, तो इस इनहिबिटरी न्यूरॉन ने थैलेमस में एक्चुअल में इसको इनहिबिट करना था, पर ये यहाँ पर ग्लोबस पैलिडस इंटरनस में इनहिबिट हो चुका है, तो यहाँ पर इनहिबिशन कम होगा, तो यहाँ पर इनहिबिशन कम होने की वजह से ये एक्टिव रहेगा, और ये इसकी एक्टिविटी को कॉर्टेक्स में जाके स्टिमुलेट कर देगा और मोटर एक्टिविटी हो जाएगी। ये है डायरेक्ट पाथवे। इसी तरह से इनडायरेक्ट पाथवे में क्या है, इट इन्वॉल्व्स द ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नस एंड द सबथैलेमिक न्यूक्लियस। उसमें इंटरनस था, यहाँ पर इंटरनस था ये वाला, और उसमें एक्सटर्नस है। स्ट्राइटम को एक्साइट करने पर क्या होगा, इट प्रिवेंट्स द ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नस फ्रॉम सिग्नलिंग, क्योंकि स्ट्राइटम से ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नस पे जो जा रहा है वो इनहिबिटरी जा रहा है, स्ट्राइटम तक स्टिमुलेटरी था। उसके बाद
जो ग्लोबस पैलेटस एक्सटर्नल था नॉर्मली इनहिबिट्स द सबथैलेमिक न्यूक्लियाई which would otherwise be tonically active and therefore increasing the activity of the globus pallidus internus. अब ये globus pallidus internal की एक्टिविटी को बढ़ा देगा. The globus pallidus internal है वो inhibit करता है thalamus को and prevents it from exciting the motor cortex. In general, the indirect pathway decreases the motor activity. So initially जो डायरेक्ट पाथवे थी हमें ये ध्यान रखना है कि जो डायरेक्ट पाथवे है वो मोटर एक्टिविटी को एनहांस करती है और जो इनडायरेक्ट पाथवे है वो मोटर एक्टिविटी को कम करती है. इस तरह से जो इनडायरेक्ट पाथवे थी स्ट्रेटम से ग्लोबस पैलेटस में आई लेटरल वाले में. अब स्ट्रेटम स्टिमुलेट हुआ, यहाँ पर स्टिमुलेशन हुआ तो ये जो गाबा एनर्जी स्टिमुलेट हुए तो यहाँ पर ज़्यादा गाबा आया. ज़्यादा गाबा आने की वजह से ये जो लेटरल ग्लोबस पैलेटस से जो सिग्नल सबथैलेमिक में जा रहे थे वो अब यहाँ पर ये इनहिबिट हुआ तो इनहिबिटरी जो यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर था वो कम हुआ जिसकी वजह से ये स्टिमुलेटर यहाँ पर आएगा. ये स्टिमुलेटर यहाँ आएगा तो ये इस गाबा को स्टिमुलेट करेगा जिसकी वजह से थैलेमस में आने वाले गाबानर्जिक केमिकल ज़्यादा होगा यानी कि ये इनहिबिट होगा तो ये इसको फिर से यहाँ इनहिबिट करेगा यानी कम स्टिमुलेट करेगा और डिक्रीज करेगा मोटर एक्टिविटी को. तो एक डायरेक्ट पाथवे थी जो मोटर एक्टिविटी को बढ़ाती है और एक इनडायरेक्ट पाथवे है जो मोटर एक्टिविटी को कम करती है. बैलेंस कैसे है? व्हेन द स्ट्रैटम रिसीव्स अ मोटर कमांड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पाथवे आर एक्टिवेटेड साइमल्टेनियसली एंड देयर इफेक्ट ऑन ग्लोबस पैलेटस इंटरनस आर कॉन्फ्लिक्टिंग एंड बैलेंस. एक दूसरे के अगेंस्ट में काम करते हैं क्योंकि कोई भी जब हम काम करते हैं सपोज करो रिस्ट पे फ्लेक्शन कराना है तो फ्लेक्सर्स को एक्टिवेट कराना है और एक्सटेंसर्स को हमें थोड़ा सा रिलैक्स कराना है तो ये एक्टिविटी को हमें बैलेंस करना है. एनी इन्फ्लुएंसेस that changes this balance might be used to regulate the motor output. जो substantia nigra pars compacta है it can potentially have a major influence over motor output because it sends dopaminergic axons back to two areas of the stratum. अब क्या होता है जो substantia nigra का क्या रोल है, ये dopaminergic न्यूरॉन्स होते हैं वहाँ पे स्ट्रैटम में तो ये डोपामिनर्जिक सिग्नल्स भेजता है. जो डायरेक्ट पाथवे थी वहाँ पे D1 रिसेप्टर्स होते हैं और जो इनडायरेक्ट पाथवे थी वहाँ पे D2 रिसेप्टर्स होते हैं. तो जब डोपामिन D1 रिसेप्टर पे जाता है यानी कि डायरेक्ट पाथवे में जाता है तो ये उसको स्टिमुलेट करता है और जब डोपामिन D2 रिसेप्टर पे जाता है यानी कि इनडायरेक्ट ये उसको इनहिबिट करता है और इस तरह से ये मोटर एक्टिविटी को फैसिलिटेट करते हैं. When active, these neurons increases the activity of the direct pathway via dopaminergic D1 रिसेप्टर्स वाइल जो साइमल्टेनियसली सप्रेस करते हैं इनडायरेक्ट पाथवे को वाया डोपामिन D2 रिसेप्टर्स. ये बोथ इफेक्ट फेवर करते हैं इंक्रीज मोटर एक्टिविटी को. सो जो बेसल गैंग्लिया के जो फंक्शंस होते हैं फाइन एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करता है. जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं कटिंग पेपर विद सीजर्स, hammering nails, shooting a basketball through a hoop, passing a football, throwing a baseball. Most aspects of the vocalization, controlled movements of the eye, most of them are performed subconsciously. अब बेसल गैंग्लिया के फंक्शंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो इसके क्या क्या फंक्शंस हैं? प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग ऑफ द मोटर एक्टिविटीज यानी कि दे डिस्चार्ज बिफोर द मोमेंट बिगिंस. जैसे ही कॉर्टेक्स में कुछ काम करने का सोचा एनी कॉर्टेक्स जैसे ही डिसाइड करता है अब ये काम करना है तो उससे पहले उसकी प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग बेसल गैंग्लिया करता है. एंड दे डिस्चार्ज बिफोर द मोमेंट बिगिंस. दे आल्सो कंट्रोल द पोस्चर. बेसल गैंग्लिया thalamic cortical projection to brainstem influences the descending pathways that controls the posture. They also inhibit the stretch reflexes by stimulation of the caudate nucleus. Neostratum regulates the subconscious movements. It also play a role in cognitive functions. तो cognitive functions में किस तरह से रोल प्ले करता है? Most of the motor actions occur as a consequence of the thoughts generated in the mind. This process is known as cognitive control of the motor activity. तो कॉग्निटिव कंट्रोल की जो पाथवे है द कॉग्निटिव कंट्रोल ऑफ मोटर एक्टिविटी इज एग्जीक्यूटेड बाय द बेसल गैंग्लिया थ्रू द फीडबैक लूप्स. ठीक है, कॉर्डेट लूप जो है. ग्लोबस पैलेटस प्रोवाइड्स इनपुट्स फॉर एप्रोप्रिएट मसल टोन फॉर स्किल्ड मूवमेंट्स.
फिर है substantia nigra जो है is the center for coordination of impulses essential for skilled movements. It also controls the associated movements that occur automatically and normally with various body movements. ये टाइमिंग को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि हाउ रैपिडली द मूवमेंट शुड बी परफॉर्म, मतलब कोई भी काम हम कर रहे हैं उसमें टाइमिंग होती है, किस तरह से करना है, उसको स्लोली एग्जीक्यूट करना है कि एकदम फास्ट एग्जीक्यूट करना है। एंड स्केलिंग करते हैं कि मूवमेंट कितना होना चाहिए, हाउ लार्ज द मूवमेंट शुड बी, यानी कि इंटेंसिटी को स्केलिंग करते हैं कि सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने सामने पड़े किसी पेन को उठाना है तो उस पेन को उठाने के लिए हाथ का मूवमेंट कितना दूर तक जाएगा, कितनी दूर से वापस आएगा, कहाँ पे फ्लेक्शन होगा, कहाँ पे कब एक्सटेंशन होगा, उस सबको कंट्रोल करते हैं, टाइमिंग एंड स्केलिंग। जो subconscious execution of some movements, basal ganglia subconsciously execute some of the movements during the performance of trained motor activity, जैसे कि swinging of arm while walking, movements of limb while swinging, इस तरह के जो actions होते हैं वो basal ganglia कराता है। इसके अलावा control of the muscular activity, basal ganglia exert the inhibitory effects on spinal reflexes and regulate the activity of muscles which maintain the posture. Visual and labyrinthine जो reflexes होते हैं are important in maintenance of posture. The coordination and integration of impulses for these activities depend upon the basal ganglia. ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का है इनहिबिटरी, ये देखो इसमें सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से जो स्टिमुलेटरी सिग्नल ग्लूटामिनर्जिक सिग्नल स्ट्राइटम में गए, स्ट्राइटम से फिर वही सिग्नल्स कहाँ जाएंगे, अब सबसे पहले डायरेक्ट पाथवे में ग्लोबस पेलाइडस इंटरनस के पास। ग्लोबस पेलाइडस इंटरनस में जाने वाले सिग्नल्स गाबार्जिक हैं, तो ये जो ग्लूटामिनर्जिक हैं इन्होंने गाबार्जिक को स्टिमुलेट किया, तो जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाले सिग्नल में गाबा केमिकल ज़्यादा आएगा, जिसकी वजह से ये गाबार्जिक इनहिबिट होगा। इसके इनहिबिट होने की वजह से यहाँ पर थैलेमस में कम गाबा आएगा, जिसकी वजह से ये स्टिमुलेटरी इफेक्ट आएगा ग्लूटामेट का और ये मोटर एक्टिविटी को एनहेंस कर देंगे। ये है डायरेक्ट पाथवे। जो इनहिबिटरी पाथवे है, इनडायरेक्ट पाथवे है, उसके अंदर कॉर्टेक्स से स्ट्राइटम में सिग्नल आएंगे, स्ट्राइटस से ग्लोबस पैलिडस, यहाँ पर इस जगह पर सिग्नल आएगा इनहिबिटरी, यहाँ पर गाबा ज़्यादा आएगा तो यहाँ से निकलने वाला गाबा अब कम हो जाएगा, तो यहाँ पर इनहिबिटरी एक्शन सबथैलेमिक में कम होगा, जिसकी वजह से स्टिमुलेटरी ज़्यादा होगा और वो ग्लूटामिनर्जिक जाएगा ग्लोबस पैलिडस इंटरनस में। यहाँ इसको ये स्टिमुलेट करेगा इस बार, और स्टिमुलेट होने की वजह से ये गाबा यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ जाएगा, और ये गाबार्जिक जो कि इनहिबिटरी था वो इसके एक्शन को इनहिबिट करेगा और ये मस्कुलर एक्टिविटी को डिक्रीज करेगा। तो ये थी डायरेक्ट पाथवे और ये थी इनडायरेक्ट पाथवे। तो डायरेक्ट पाथवे मोटर एक्टिविटी को एनहेंस करता है और इनडायरेक्ट पाथवे मोटर एक्टिविटी को कम करता है। तो ये और वीडियो देखना मत करो, सुबह 6 बजे से पहले और 8 घंटे एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, फिट रहो, इनकम के बहुत ज्यादा 2 से 3 सोर्स बना लो अपने जिंदगी में। 12 महीने के अंदर पूरी लाइफ कर देंगे, इनमें से 3 से 4 चीज ये है हमारी इसकी क्लास, और बाकी सर्किट्स और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो सर्किट्स हैं वो आपको एक बार जब वापस से ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी तब करा दी जाएंगी। आज की क्लास इतनी ही है, ठीक है।